अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि मामूली लेन देन पर एक शख्स की जान लेने की कोशिश की जाती है। शादरा टाउन के इलाके में 5 लाख रुपए के लेन देन पर एक शख्स को अगवा करके बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये मामला है क्या, ये मामला होता कैसे है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि लेन देन का मामूली सी रकम का एक तनाज़ा था, जिस पे मुल्ज़मान जिनके ख़िलाफ़ थाना शादरा टाउन में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और मुल्ज़मान अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मामूली सी जो एक लेन देन का मामला, मामूली सी बात पे जो है एक शख्स को इस कदर अगवा करने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है कि वो अभी तक उसकी हालत जो है वो बेहतर नहीं है। उसके सर पे शदीद चोटें आती हैं, सर का ऑपरेशन भी होता है और जिस्म पे बहुत सारे इतने हसास किस्म के ज़ख़म हैं, तशद्दुद के निशानात हैं और अब जो है वो उसकी डॉक्टरों की जानिब से कोई तसल्ली बख्श बात या जवाब जो है वो नहीं दिया जाता। इस मुकदमे के मुद्दई हैं 324 की दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज होता है। भाई हैं उनके और मुकदमे के मुद्दई भी हैं। इनसे जानते हैं ये मामला है क्या, इनका भाई क्या कारोबार करता था और कितने पैसों का लेन देन का मामला था और नौबत यहाँ तक कैसे पहुँचती है, ये हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। भाईजान की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? नासिर इकबाल नासिर इकबाल सर। और ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? अमजद इकबाल। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਦੇਣੇ ਸਨ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਮਲਕ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ 5 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਕਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ। ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕੌਲ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨੀ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ, ਬਿਸਕੁਟ, ਨਿੰਮਕੋ ਸ਼ਿਮਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨੀ ਫਸਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ? 5 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ? 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਤਕਾਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਨ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਜੀ ਭਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਲਿਆ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਆ ਗਿਆ 5 ਲੱਖ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਥੋੜੇ ਸਨ ਬਹੁਤੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 3-3:30 ਵਜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 7-8 ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਵੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਜਦ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ CDR ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਢਵਾਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। CDR ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ आ गया ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿ ਠੀਕ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ठीक ਪੈਸੇ ਦਾ ठीक ठीक है ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ठीक ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਅਹਿਕਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ठीक है। है इस गल की असी तफसील ये मामला कुछ इस तरह से है कि जब इनके भाई अमजद जो ज़ख्मी भी है और उसकी हालत बड़ी तशवीशनाक है, उसको जब मुलजमान की जानिब से अगवा किया जाता है, घर के बाहर से अगवा करके ले जाते हैं, तो उसके पास एक मोबाइल फ़ोन था जो उसकी रिकॉर्डिंग ऑन होती है और जब उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उस पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के साथ जो है उसको ज़ख्मी किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, तो वो उसकी मोबाइल की रिकॉर्डिंग चल रही होती है और इसी दौरान वो मुख्तलिफ़ लोगों को फ़ोन कॉल्स भी की जाती हैं, भाइयों को भी की जाती है, दूसरे लोगों को भी की जाती है कि ये इसके पैसे जो इसने हमें देने हैं बकौल मुल्ज़मान के, वो पैसे दे दें और इसको यहाँ से ले जाएं। यानी कि ये अगवा करके एक किस्म का तवान भी मांगा जा रहा था जो ऑफेंस इसमें बनती है, लेकिन वो तमाम चीज़ें महफूज हो गई। मोबाइल फ़ोन में उसका जो है रिकॉर्ड वो सब कुछ आ गया, इन्होंने पुलिस के भी हवाले कर दिया है। वो रिकॉर्डिंग क्या है वो भी हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि वो रिकॉर्डिंग सुने कि मुलजिम क्या कहते हैं किसी से। मुझसे छोटे तू कहना तेरे कोल 5 लाख ਉਹਨੇ ਕੋਲ 6 7 8 ਲੱਖ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਕਿੱਥੇ ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲਈਏ ਚੁੱਕ ਮੰਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ PTC ਦਾ ਪੈਸੇ ਪਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੰਜ ਨਾਲ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੈ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਮਿੰਟ ਲਾ ਫੜ ਆਪਣਾ ਫੋਨ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਉੱਤੇ ਕਮਰੇ ਬੜਾ ਪਿਆ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਸ में ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਆ ਕਮਰੇ ਪਿਆ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੁੱਕੜੇ 'ਚ ਐਸੇ ਕਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਢਾ ਲੈ ਫਰਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਤਲਬ 10 15 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰਾਡ ਨਾ ਕਢਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੋ जाएंगे ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी जिसमें हम इन्हीं से ही वजाहत तलब कर लेते हैं कि कौन बात किसकी कर रहा है और जो जवाब देने वाला है वो कौन है और बोलने वाला कौन है। ये रिकॉर्डिंग असी सुनाई है टीवी ते भी दिखाती ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਵਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨੇ ਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਰਾ ਇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਡੰਡਾ ਪੈਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਨਾ ਥੋੜਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਓ, 11 ਵਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। 7:27 ਦੇ ਜਿਹਨੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਚੋਟਾਂ ਪਾਏ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੈਪ ਡੰਡੇ ਯਾਨੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਟੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੇਨ ਬਰਸਟ ਹੋ ਜੇ, ਫਟ ਜੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ, ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਚੋਟਾਂ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨਾ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਟਾਂ ਚੁੱਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ 4 ਫੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੋਟਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 15-16 ਦਿਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਗਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪੈਪ ਹੈ ਉੱਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਹ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2 ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਬ ਹੈ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 29 ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 1 ਘੰਟਾ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾ ਅਸਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰੋਇਆ ਪਿੱਟਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ECG ਕਰਦੇ ਨੇ, CT ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਚੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ FIR ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ FIR ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 12 ਤਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 23 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਹਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਉਹ। ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਭਾਈ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਤਮੀਮਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 1-2 ਜਿਹੜੇ 6 ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ। 6 ਹੋ ਗਏ ਤੇ 1-2 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਾਨੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਸਹੀ ਦਫਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰਚਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਫਤੇ ਬਜਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਫਤੇ ਬਜਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਵਾ ਦੀ ਵੀ ਦਫਾਤ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਹਫਤੇ ਬਜਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਯਾਨੀ 3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ CDR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਮਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁਨਸਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੈਚਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ, ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ 6ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ 4ਥੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਸ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ
ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ डिमांड नहीं है। ज़ख्मी और मुतासरा जो अमजद है ये उनके बड़े भाई हैं। ये हुकूमत वक्त से, पुलिस के आला हुकाम से, आईजी साहब से और लाहौर के सरबराह पुलिस के जो हैं उनके लिए ये उनके आगे ये अपील करते हैं कि जिनके भाई के साथ जो कुछ हुआ उसका अजाला होना चाहिए और इनको इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए। मामला सारी तफसील इन्होंने बता दी। मुकदमा भी दर्ज हो गया, 324 की दफ़ात यानी कि इक़दाम कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ, लेकिन इसमें FIR दर्ज करते वक्त वो चीज़ें शामिल नहीं की गई जो इन्होंने हमारे साथ शेयर की। भाई यानी कि अमजद जो है वो यहाँ से घर के पाइट से अगवा करके उसको ले जाया जाता है, अगवा की दफ़ात उसमें नहीं है। फिर उसको अगवा करने के बाद इनको फ़ोन कॉल के ज़रिए, जो इनके पास रिकॉर्ड भी मौजूद है, उससे उसका तवान मांगा जाता है। अगवा करने के बाद तवान मांगा जाता है कि इतने पैसे इसने हमारे देने हैं और आप जो है वो पैसे दे के तो अपने भाई को ले जाए। ये नहीं मानते, इनकार करते हैं या जो भी मामला होता है, उसके बाद शदीद ज़ख्मी हालत में घर के करीबी भाई को फेंक दिया जाता है। लोग भी देखते हैं, लोगों के सामने सारे मामला आते हैं। फिर इसको अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है इलाज करवाने के लिए। मुकामी अस्पताल था, यहाँ से फिर मुंशी अस्पताल जाते हैं, वहाँ से फिर जनरल हॉस्पिटल किया जाता है। इनके मुताबिक अभी तक प्रॉपरली उसका मेडिकल भी नहीं आया, जो मेडिकल की बुनियाद पर मज़ीद दफ़ात उसमें शामिल की जा सकती हैं। भाई किस हालत में है ये भी हम आपको आगे चल के प्रोग्राम में दिखाते हैं कि वो किस कंडीशन में इस वक्त घर में ही ज़ेर इलाज है। ना वो कुछ खा सकता है, ना कुछ पी सकता है, ना वो उठ सकता है, ना वो बैठ सकता है। बिल्कुल बिस्तर के साथ पड़ा हुआ घर में जो है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। इस प्रोग्राम से जुड़े दीगर लोग क्या कहते हैं, पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है कि ये मुलजिम जो है कसूरवार है, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात में जो मुकदमा है उसमें काफ़ी सारे शवाहिद मिले हैं और इनकी गिरफ़्तारी हर सूरत में की जाएगी। ये वो मुतासरा और ज़ख्मी अमजद है जो घर में तशवीशनाक हालत में है। डॉक्टर्स ने दुआ का मशवरा दिया है कि दुआ करें, अल्लाह ताला इसको सेहत दे। ये बच्चे हैं छोटे, 3, 2 बेटियां और 1 बेटा है। बेटा कुछ कहना चाहती हो? मेरे वालिद साहब को उन लोगों ने मार मार के इतना बुरा हाल कर दिया है। हमारी मरियम नवाज़ से अपील है कि हमारे वालिद को इंसाफ दिलाया जाए। मुल्ज़मान हैं जो वो अभी तक आज़ाद फिरे हैं, 3 माह हो गए इनकी ये हालत है। बेटा आप कुछ करना चाहती हैं? बताओ क्या हुआ पापा को? उन्होंने मारा था। मारा था? बात भी नहीं कर पाते? नहीं। किन्होंने मारा था? से लड़ाई हुई थी। अच्छा ठीक है, तो आप सामने आओ, आप बात करो, बोलते हैं, आवाज़ दो। पापा को क्या कहती हो? माइक हाथ में रखो। पापा क्या हाल है? और पूछो कुछ बेटा, और बात करो। उनको कैसी तबीयत है? कैसे तबीयत है? आप आ जाए। पापा अम्मा ने मारिया सी तानू? पापा अमजद की आपने हालत देखी कि किस तरह से वो बिस्तर पर है और किस तरह से जुल्म उसके ऊपर ढाया गया। उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके घर वाले, उसके भाई उसका इलाज मुआवजा करवा रहे हैं और किसी तरह से भी वो चाहते हैं कि उनका भाई ठीक हो जाए, लेकिन उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। इस वक्त जो ज़ख्मी है, मुतासरा शख्स है अमजद, उसकी बीवी है हमारे साथ, इंतहाई दुखी हैं, बात नहीं कर पा रही हैं, अल्फाज नहीं है उनके पास कि कौन सा जुल्म उनके साथ हुआ है। उनसे भी हम बात करते हैं। फिर उसी के बड़े भाई हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं कि जो जुल्म और ज़्यादती मुल्ज़मान की जानिब से हुई और वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद हैं।
बाजी क्या कहना चाहती हैं, मुझे पहले ये बताएं कि कैसी तबीयत है अमजद की, आप ही देखभाल कर रही होंगी, ये ज़रा माइक करीब कर लें। तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कि जैसे बहुत बुरी हालत है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं जाके। 3 महीने हो गए हैं, मैं घर से उठा के ले गए थे और बहुत बुरी उसकी हालत की हुई है। अभी वो खुद हाथ भी नहीं हिला सकते अपना, ये देख लें, बहुत बुरी हालत है उनकी। ठीक है, तो हमें कोई इंसाफ नहीं 3 माह से मिला, कोई सुनवाई नहीं हो रही। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मैं किसकी तरफ देखूँ, वही बात सहारा था हमारा। अच्छा मेरी बहन ये बताएं कि वाकया हुआ क्या था, पैसे छोटा सा पैसों का लेन देन था। कितने पैसों का? 5 लाख? नहीं, 5 भी नहीं था, कम था? जी कम था, 5 से कम था। ठीक है, तो वो घर से पैसों का लेन देन था, घर बैठ के बात करते, वो घर से उठा के बिना बताए ले गए। बहुत बुरी उसकी हालत में हमें वो मिले हैं। तो अब आप देख लें, जो भी उसकी कंडीशन है, तो मुझे तो इंसाफ चाहिए। ठीक है, डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे, वो उन्होंने तो कह दिया हुआ कि ये बस आप खिदमत करें इनकी बस। अच्छा, चोटें कहाँ लगी हैं? चोट दिमाग पे लगी हुई है, और ऑपरेट हुआ था, पीछे कमर पे इतनी ज़्यादा चोट है, वो नहीं सही हो पा रही। तो जगह जगह चोटें लगी हुई हैं उसे। वो तो चले कुछ तो बेहतर हो गई हैं, कमर वाली हो ये दिमाग वाली, वो तो बिल्कुल भी कवर नहीं हो रही अब। ठीक है, तो खाना वो बस वो खुराक वाली वो लगी हुई है, उससे दे रहे हैं। क्या खाया जा रहा है? खुद से तो वो मुंह से तो पानी का एक घूंट भी नहीं पी रहे। खुराक की नाली से सब कुछ जा रहा है? उसी से जा रहा है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, कब तक ऐसा सर वो अभी कोई उम्मीद नहीं दिला रहे। उम्मीद भी नहीं दिला रहे? जी, वो उम्मीद भी नहीं दिला रहे, वो कह रहे हैं बस आप खिदमत करें इनकी। ठीक है, तो बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। और वो वहाँ सहारा था मेरा, किसकी तरफ देखूं, कोई इंसाफ भी नहीं मिल रहा। कहाँ जाके कहूँ कि मुझे इंसाफ दे, मैं चली जाती हूँ वहाँ पे। तो 3 महीने हो गए वह हम इतनी अजियत में, और वो फिर रहे हैं जो जिन्होंने जुल्म किया। कोई सुनवाई नहीं है, कोई पकड़ नहीं है उनकी। क्या उनको सज़ा का वो कुछ नहीं है? मिलनी चाहिए सज़ा। हाँ, तो मिलनी चाहिए ना, कब मिलेगी? मियाँ तो मेरा वो है जो बेड पे लेट गया, पता नहीं डॉक्टर कोई उम्मीद नहीं दे रहे कि हाँ ये सही होगा या नहीं। किसी को कुछ कहना चाहती है, कोई पुलिस वालों को? हाँ, तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? 3 महीने से कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं किया उन्होंने। अगर किया होता तो वो अब तक उनकी गिरफ्त में होते। तो मुलजिम जो हैं वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे? कोई बासर हैं, कोई उनका पैसे वाले हैं, कौन है वो? पैसे वाले ही हैं, बासर हैं, क्या है, जो भी है आपके सामने ही है। कोई नहीं पकड़ाई, कोई कुछ नहीं हो रहा। बासर है इसलिए तो पकड़े नहीं जा रहे। तो और गरीब पीस रहे हैं, बस देख लें। गरीब को बेड पे लिटा दिया, कोई सहारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसकी फिर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जिन्होंने जुल्म किया है वो फिर रहे हैं, सब उनके साथ है। तो आप किसी सीनियर अफसर के पास ये गए हैं भाई? जी जा रहे हैं, फिर भी हर जगह जा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुन रहा? जी। अच्छा ये बताएं कि जो अमजद है वो क्या कारोबार करता था, इनके साथ क्या लेन देन था? लेन देन सर, दुकान थी, बोतल, जूस, बिस्किट वगैरह, ये दोनों इन्वेस्ट, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था, इन्होंने भी। अच्छा। अब ये लेन देन का वो तो बैठ के बात करनी थी ना, क्या बात है, किस तरह का लेन देन है, क्या, वो तो उनकी खुद की बात है जी, इतने हमने लेने, हम तो नहीं जानते। आपको नहीं पता था? नहीं। कोई घर में कभी बात नहीं की शोहर आपके ने कि किसी के पैसे देने हैं? नहीं की। तो ये आपको कब पता चला कि कोई लेन देन का मामला है? जब ये मामला हुआ उस वक्त पता चला? जब बस उसी दिन पता चला था। उसी दिन पता चला था? अच्छा। उसी दिन पता चला था। तो बात यही थी कि बैठ के बात करते हैं, जो भी मामला है वो क्लियर करते हैं। उन्होंने लेकिन लेन देन का मामला भी हो तो किसी को ऐसे तशद्दुद जी, जब बात भी हो गई फिर भी उन्होंने जुल्म इतना ज़रूर करना था, बैठ के बात जब करनी थी तो फिर क्लियर कर लेते, बात की बात थी वो। हाँ। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बात भी नहीं की और जुल्म की इंतहा कर दी। ठीक है, ये माइक दे जरा भाई को।
भाईजान क्या आपका क्या नाम है? माइक करीब कर। मेरा नाम जवेद इकबाल है, मैं मजरूब का बड़ा भाई हूँ। अच्छा, तो मजरूब का इकबाल के साथ कारोबार था बिस्कुट वगैरह का। ठीक है। तो अभी 1 माह उन्होंने काम किया है, 5 लाख का लॉस शो कर दिया मेरे भाई के खाते में ना, अच्छा, कि इसकी वजह से नुकसान हुआ है। ठीक है। जबकि पार्टनरशिप थी तो लॉस तो बराबर डिवाइड होता है, और लॉस, नफ़ा और नुकसान तो हर कारोबार जी। का हिस्सा है। इसके बाद उन्होंने किसी डेरे पर जाके चेक ले लिया, उससे चेक लिया पहले? चेक लिया। अच्छा, तो चेक के बाद तो बिल्कुल जवाब नहीं बनता तशद्दुद का। बिल्कुल ठीक है। अगर चेक कैश नहीं होता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते, जो हक है। तो उसके बाद उन्होंने फिर एक डेरे पर जाकर तशद्दुद किया है। वो किसका डेरा था? वो जो मुर्जा ना और इनके चचा का। अच्छा, वो कौन? जो उसका नाम है, जिसका डेरा था? जी, उससे घर पे जाके ना तशद्दुद किया। अच्छा, ठीक है। तो चेक ले लिया? चेक पहले ले लिया था उन्होंने, चेक पहले ले लिया था, तशद्दुद बाद में किया है। तशद्दुद बाद में किया। जब चंद ठहर तशद्दुद के। किया है जी। वो किसी के डेरे पे ले जाके किया? जी जी, अच्छा, वहाँ पे मारते रहे हैं? मारते रहे हैं, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है मजरूब के मोबाइल में, बिल्कुल है। जहाँ वो कह रहे हैं कि जाओ ऊपर से डंडा लेके और सामने कमरे से। हाँ, अच्छा, वो थोड़ा भी लेके आना, वो परले कोने में पड़ा हुआ है। ये आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं आप, ठीक है, मजरूब के मोबाइल में से। बिल्कुल ठीक है। उस वक्त हम तो पास नहीं थे ना। ठीक है। तो उन्होंने सुना है मुलजमान ने फ़ोन भी किया था आप भाइयों में से किसी को? मेरे बड़े भाई को फ़ोन किया है कि अगर आपके पैसे अभी आप पहुँचा देते हैं पैसे। कितने पैसों का मुतालबा था? 5 लाख का। 5 लाख का। अगर अभी पैसे पहुँचा देते हैं ठीक है, वरना शाम तक अपने भाई का हाल देखे हम क्या करते हैं इसका। तो उन्होंने वही किया? जी, वही किया उन्होंने। जबकि टाइम उसके बाद थोड़ी देर बाद टाइम तय हो गया था। अच्छा, कि जी 11 बजे मीटिंग होगी, हिसाब किताब करेंगे, क्योंकि मुलजमान के पास कोई हिसाब किताब नहीं है कितने पैसे लेने हैं। अच्छा, प्रूफ नहीं है। प्रूफ नहीं? वो तो वन साइड डिसीजन है ना कि हमने 5 लाख लेना है, ठीक है। जबकि प्रूफ कौन नहीं उनके पास। प्रूफ कोई नहीं है कि 5 लाख रुपया लेना भी है कि नहीं लेना। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि 5 लाख से कारोबार शुरू किया और 1 महीने में 5 लाख का लॉस भी हो गया। जबकि जिस दिन इन्होंने तशद्दुद किया है उस दिन उनके गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ था। अच्छा, मार्केट में क्रेडिट था, जो कि बिल के बाद में लेते रहे हैं बिल। अच्छा, लेते रहे हैं। हाँ जी। तो आप मुझे ये बताएं कि भाई आपका इनको कब से जानता था, इनके साथ पार्टनरशिप कर ली? कोई पहले भी कारोबार था इनके साथ? नहीं, इनके साथ ये फर्स्ट टाइम काम किया है। अच्छा, और 1 माह काम किया इनके साथ। मोहल्लेदार थे? मोहल्लेदार थे। जी। तो ये बताएं कि जब 5 लाख रुपया मुतालबा आपसे किया जा रहा था या आपके बड़े भाई से किया जा रहा था, तो आप लोगों ने उस वक्त पुलिस को कॉल नहीं की, पुलिस को इतला नहीं की कि पैसों का मामला लेन देन है, आपके भाई को उठा के ले गए? नहीं सर, मैं पता नहीं था कि कानूनी कार्रवाई क्या होती है। ज़िंदगी में पहला चांस है कि मेरे थाने से हमारा वास्ता पड़ा है। अच्छा, तो आपको अंदाज़ा नहीं था कि इस पे 15 पे कॉल करते मुतलका थाने जी, में? हमारी उनसे जब बात हुई मुलजमान से, तो उनसे ये कहा कि ठीक है भाई, बैठ के साफ कर लें, जो बनता होगा हम देंगे। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि मैं हमारे भाई के साथ ज़्यादती ना हो। ये हमारी शर्त है कि उससे ज़्यादती ना हो साहब। ज़्यादती फिर भी उन्होंने कर दी? जी, फिर भी कर दी। कुछ कहना चाहते हैं? और मेरी पुलिस के आला अफसरान से दरख्वास्त है कि हमें ज़रा इंसाफ में थोड़ी सी तेज़ी लाई जाए, मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। हाँ, वो आज़ादा ना फेर रहे हैं। ठीक है, जो इंटर्न पे हैं उनका तो केस लग गया ना, मसला लग गया। जो जिनकी इंटर्न नहीं है वो भी आज़ाद फेर रहे हैं, उनको तो गिरफ्तार करें ना। हाँ, उनको भी नहीं किया जा रहा। हाँ जी। तो और पुलिस के पास गए नहीं आप? जी, पुलिस के पास हम 20 चक्कर लगा चुके हैं। क्या कहती है पुलिस? पुलिस तो हमारे साथ काम कर रही है। अच्छा, वो हमारी बात सुनते हैं। बात सुनना और मुलजमान को पकड़ना बड़ा फ़र्क है। दोनों में से कौन सा काम हो रहा है? सिर्फ बात सुन रहे हैं या गिरफ्तार करने के लिए छापे भी मार रहे हैं? तफ्तीश में उन्होंने मुलजमान को कसूरवार ठहराया है। ठीक है। हाँ जी, वो कहते हैं कि मुलजम में तशद्दुद हुआ है, ये वकूआ हकीकी वकूआ है, ये सच्चा वकूआ है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अच्छा, ये उन्होंने पुलिस ने जी जी बिल्कुल कहा है? जी, कहा है। लिखा है अपनी जी। तफ्तीश में? जी जी। तो यकीनन अब उनकी अबूरी ज़मानतें जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी अदालत से, फिर गिरफ्तार भी हो जाएंगे। लेकिन तफ्तीश लंबी बहुत हो गई है ना, 3.5 महीने हो गए हैं। 3.5 महीने? और अभी भी पता नहीं वो कब गिरफ्तार होते हैं। हमारा मुतालबा गिरफ्तारी का और हमें इंसाफ चाहिए। अभी भी कोई किसी को थ्रेट, कोई ऐसा डरा धमका रहा है? कोई मुलजमान तो आज़ाद है, आप कहते हैं कि जी, बाहर शुरू स्टार्ट पे वो डरते धमकाते रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब नहीं वो। अच्छा, ये बात बताएं कि जब मुलजमान ने फ़ोन किया आपके बड़े भाई को कि जी। पैसे दे दें, तो फिर पैसे नहीं अदा किए, क्या वजह थी? कि आपको यकीन नहीं था
सर पैसों का हमें पता ही नहीं कितने देने थे, कुछ हिसाब किताब नहीं हमारे पास था ना, उन्होंने हमारे साथ कुछ हिसाब किताब किया है। जब बाद में ये डिसाइड हो गया था थोड़ी देर बाद ही कि हमारे साथ आपको 8-9 बजे बैठते हैं, 9-10 बजे बैठते हैं, बैठ के साफ कर लेते हैं, जो बनते हैं पैसे देंगे माँ बाप को। अच्छा। मेरे बड़े भाई ने कहा है शर्त यह कि मेरे भाई के साथ जाती ना हो। उन्होंने कहा जी कि हम तो हमारी शादी है, 9-10 बजे नहीं बैठ सकते, कोई और टाइम रख लें। ठीक है। फिर रात 11 बजे का टाइम तय हो गया मेरे साथ कि ठीक है 11 बजे बैठ के साफ कर लेते हैं, जो बनते होंगे हम देंगे पैसे उनको। ठीक है, फिर नहीं बैठे उनके उससे साथ? पहले जब हुआ उन्होंने कर दिया, उन्होंने उससे पहले तशद्दुद कर चुके जी थे, कर चुके। मतलब जख्मी हो गया था, बुरा हाल हो गया था। नहीं 11 बजे से पहले ना वो उन्होंने शिद्दत वाला मामला कर लिया, उन्होंने कर लिया था। हाँ जी। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर कोई उम्मीद नहीं दिला रहे, वो कहते उम्मीद हैं नहीं दिला रहे? नहीं दिला रहे, वो कह रहे हैं कि बस दुआ करें। एक डॉक्टर को ये अल्फाज हैं कि बस ये दुआ करें, कोई अल्लाह का मोज़ है इसको सेहतियाब कर दे। हमने कहा जी कुछ टाइम दे दें हमें, 2-4 महीने 6 महीने साल का टाइम दे दें, कितनी देर बाद ये ठीक हो जाएगा। कहते हैं हम टाइम नहीं दे सकते। हाँ। और वो 3.5 माह से बेड पे पड़ा हुआ है, खुराक की नाई लगी हुई है, हाल तो उसकी सीरियस है। बिल्कुल ठीक है। ये भाई थे और ज़ख्मी की मुतासरा शख्स की बीवी थी। डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा ये उन्होंने हमें आपके सामने बताया कि डॉक्टर कोई उम्मीद नहीं दिला रहे। शादरा टाउन के इलाके में जो अफसोसनाक एक वाक़या पेश आता है, उसके पहले खाना क्या कहते हैं, उसके बच्चे क्या कहते हैं, तमाम लोगों की गुफ्तगू हमने आपको सुनवाई। FIR दर्ज है लेकिन अभी तक मुलज़मान गिरफ्तार नहीं हो सके। इसके बारे में हम कानूनी एक्सपर्ट जो हैं, कानूनी माहिर खुरम ज़िया भट्टी साहब, इनसे ये जानते हैं कि जो FIR दर्ज हुई है और पुलिस की जानिब से अभी तक मुलज़मान को गिरफ़्तार नहीं किया गया है, इसकी क्या वजह हो सकती है, और जो उन्होंने काम किया और जिस तरह से घर से उसको मुतासरा शख्स को अगवा करके लेके जाते हैं और टेलीफोन पर भाइयों से रकम का भी मुतालबा करते हैं, तो इसके ऊपर क्या दफ़ात FIR में दुरुस्त लगी हैं, ये हम आपको इनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। बहुत शुक्रिया खुरम साहब। खुरम साहब ये बताइएगा कि मैंने आपके साथ FIR शेयर की, वो जी शादरा टाउन के इलाके में बड़ी तकलीफ दे हालत है उस शख्स की। सही। उसके बच्चे 2 बेटियां 1 बेटा है, और डॉक्टर्स की जानिब से जो घर वालों ने बताया कि डॉक्टर्स ने सिर्फ दवाई तक नहीं, दुआ करने तक जो है वो मामला पहुंचा दिया। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत क्रिटिकल हालत है। FIR दर्ज हो गई 324 की दफ़ात के तहत, इस्तग़ासा आपने पढ़ा, FIR दुरुस्त हुई? देखिए ना, बात सिर्फ ये है कि हमारे फौजदारी कानून में ना जी, जो हम एक बात करते हैं कि मकूला भी है कि जब भी आपने कोई कहानी या इस्तग़ासा बनाना है, वो आपने बड़ा सोच के, और उसमें चीज़ें छुपा नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम चीज़ें छुपाते हैं या उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखते तो बाद में ब्लेम करते हैं पुलिस को या जो एजेंसीज हमारी उनको करते हैं। ठीक है। मैंने FIR पढ़ी है, और जो बात बाद में सामने आई आपके तरफ से भी और उनमें प्रोग्राम भी देखे, वो जो कहानी वो और कहानी थी। FIR में जो कहानी बताई गई उसमें ना बताया गया कि कोई कारोबार था, ना बताया गया कि कोई आपस में कोई लेन देन था, और किसी भी फौजदारी मुकदमे में या क्रिमिनल लॉ के अंदर आप देखें, हम देखते हैं, और लास्ट 25 ईयर्स मैं देख रहा हूँ, मैं काम भी फौजदारी करता हूँ, तो हमने हमेशा ही देखा है कि किसी भी इस्तग़ासे में FIR के अंदर मोटिव बहुत अहम है। जब भी आप इस्तग़ासा लिखवाएं, ठीक है, कोई बात करें, तो आपको ये बताना चाहिए कि अगर आपने लिखवाया है कि मेरे भाई को मार रहे थे या वहाँ पर उस पर तशद्दुद हुआ है, तो आपको बताना चाहिए कि वजह क्या है। अच्छा, ये बड़ा अहम है। ये बड़ा अहम होता है किसी भी क्रिमिनल लॉ के अंदर या फौजदारी मुकदमे के अंदर, मोटिव बड़ा अहम है। उसमें मुझे वजह अनाद भी कहते हैं, वजह अनाद। और वो जब लिखेंगे आप तो कहानी, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि कहानी ऐसी होनी चाहिए जो एक प्रूडेंट माइंड को अपील करे। हाँ, देखे ना, आपने देखा इस्तग़ासा? बिल्कुल देखा। और आप कहते हो ये अजीब कहानी है। हाँ, कि भाई मेरे भाई को ले गए, हाँ, और जाकर मार दिया। भाई क्यों मारा? मुझे क्यों ले गए, आपको क्यों ले गए? हर कहानी के पीछे एक वजह होती है। ठीक है, वो वजह लिखना
इस्तखासे में वो जरूरी है, बहुत ज़रूरी है जितना FIR दर्ज करवाना ज़रूरी है। जरूरी है। वो लिखेंगे तो आपके जो ट्रू फैक्ट्स हैं वो कोर्ट के सामने भी आएंगे और उस पर तफ्तीश भी सही अच्छी होगी और आपको उसका जो इंसाफ है वो मिल सकेगा। बिल्कुल ठीक है, ये बात- बिल्कुल ठीक ये है। बात- अच्छा ये बताइएगा कि बड़ी सिंपल सी फैमिली सही और हमारी सोसाइटी में ख़ासकर बहुत सारे लोग ऐसे जिनके साथ इस तरह के मामला होते हैं और उन पे मैं प्रोग्राम भी करता हूँ, सही। तो वो कहते हैं हम पहली दफ़ा थाने गए सही सही और वैसे तो पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि हमने वो फ्रंट डेस्क बना दिया है, हाँ वो कोई गाइड करने के लिए पुलिस ऑफिसर किसी की हाँ। ड्यूटी लगा दी है। सही तो वो कहते हैं कि हमें तो पता नहीं, हम तो थाने में पहली मर्तबा गए। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल जो बहुत सारे लोगों को इस बात का पता है कि वजह अनाद कितनी ज़रूरी है, सही। ये उतनी ज़रूरी है जितनी FIR दर्ज करवाना। सही सही वो कहते हैं कि हमें तो पता नहीं था, तो हमने FIR करवा दी, उसमें सिर्फ 324 इरादा कत्ल ठीक वो लगाई गई। सही। अब कुछ हो सकता है उनका? बहुत कुछ देखे ना, एक तो ये बात तो हमें माननी पड़ेगी, हम इस मुल्क में रह रहे हैं, इट्स अ पुलिस स्टेट, बिलीव कीजिए। हम बुकला भी यहाँ कह थक गए, रोज रिट्स दी होती है हाई कोर्ट के अंदर, पुलिस की बेरहमी और पुलिस की नेगलिजेंस जो है वो आया है हर बात से। आप देखिए आप ऐसे ही। क्राइम बीट करते हैं, ऐसे ही आप यकीन कीजिए इस मुल्क के अंदर, मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी पाकिस्तान बनने से पहले की, उसमें ये लिखा था कि इस बलद सगीर के अंदर 90% जैम जो है पुलिस खुद करवा रही है। ये कोई रिपोर्ट है और आज तो बहुत ही बुरा हाल है। आपकी बात ठीक है कि एक ले मैन बेचारा थाने जाता है, एक तो माहौल ऐसा है थाने का कि आपको जाके मुहर्र से मिलना है, क्या करना है, बेचारा वैसे ही परेशान हो जाता है। इतना ऐसे होगा बेचारे, मुझसे जानते नहीं करूँ क्या बेचारे, कि बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन किसी भी चीज़ का ऐसा नहीं कि हल नहीं। अब अगर आप ये बात ठीक कह रहे हैं आप कि उनके पास बेचारे को हल नहीं है, एक FIR हो गई और उसमें जो अगवा है तवान भी जो कहानी बाद में सामने आई कि उसको उसके भाई को फोन करके पैसे मांगे गए कि 5 लाख रुपया दे दो हाँ। और भाई को ले जाओ। उसको बेचारे को डिटेन किया गया डिटेन किया और बाद में उसको मार के फेंक दिया गया, जैसे कोई टिश्यू पेपर होता है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग तो है ना। ऐसा ही है। तो हमारे कानून में ऐसी एक बहुत अच्छी एक सेक्शन है 200 CRPC का, ज़ाब्ता फौजदारी का, ठीक वो है। बड़ा अहम है। ठीक है। वो ये कहता ही है कि जब कोई पुलिस स्टेट हो या कोई पुलिस ऐसा काम करती है जो जिससे आप मुतमईन ना हो या पुलिस को डंडी मारती है, तो एक प्राइवेट कंप्लेंट का इस्तगासा कहते हैं उसमें। अच्छा। वो बिफोर द जज, बिफोर द मजिस्ट्रेट, ठीक है। जो भी ट्रायबल हो सेक्शन के हिसाब से, ठीक है। वहाँ डायरेक्ट कंप्लेंट करें कोर्ट के अंदर, ठीक है। सेक्शन 200 के तहत, CRPC के तहत। ठीक है। तो वहाँ अपने शहादतें रिकॉर्ड करवाएं, एविडेंस दें अपनी वहाँ, तो उसमें फिर वो जो कोर्ट जो है वो कॉन्फ्रेंस लेके जो असल मुलजमान को तलब करेगी और जो मेन जो आपकी FIR वो स्टॉप हो जाएगी। कानून ये कहता है जब इस एक वकूए का इस्तगासा दर्ज होगा, प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज होगी, तो FIR स्टॉप हो जाएगी, कंप्लेंट पहले चलेगी। वेरी गुड। तो ये इनके पास एक हल है। हल है। कोई मैं चाहता हूँ अगर वो उनको काउंसलिंग किया तो हम हाजिर हैं हमारे के लिए, गरीब लोग हैं बेचारे, बिल्कुल ऐसा। हम तैयार हैं। ऐसे जुल्म को तो कहीं भी बर्दाश्त करने की मैं समझता हूँ कहीं भी इसकी जस्टिफिकेशन है ही नहीं, इस जुल्म की तो कहीं भी नहीं, कहीं नहीं करे, ये जुल्म है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके पास रेमेडी मौजूद है अगर वो चाहें तो। ठीक है। चले जी, ये तो आपने एक पेशकश भी कर दी जी जी कि आप भी हाजिर हैं और उनको एक रास्ता भी बताया। हाँ हाँ क्यों अब ये बताइएगा कि जो पुलिस के साथ उनका गिला है, हमने मुलजमान को गुनहगार लिख दिया है सही कि ये उस पर तशद्दुद करना, उसको मारना सही साबित होता है। अल्लाह ताला उस मुतासरा शख्स की ज़िंदगी आमीन, करे, आमीन, सही सही हालात उसके खासे ख़राब है। सही सही अब ये बताइएगा कि पुलिस मुलजिम नहीं पकड़ रही, को 2-3 लोग नामजद हैं, को 2-3 नामालूम हैं। सही सही उन्होंने पुलिस को कहा कि जी बाकी लोगों को तो पढ़ी है, हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने बात की। अच्छा पुलिस शायद कोई असर रसूख काम कर गया या क्या हो गया? असल में कुछ सिस्टम ऐसा है हमारा, आप अब यकीन कीजिए कि अब जो मैं समझता हूँ, सुना भी है कि उन्होंने शायद बेल्स करवाई हुई है, इंटरम बेल्स पे हैं वो लोग ना। इंटरम पे तो यहाँ बिलीव कीजिए कि इंटरम बेल भी चलती है कि 2-2 3-3 माह 3 माह हो चुके हैं हो गए इस कुएं को, और अब भी आप कह रहे हैं इंटरम। कि इंटरम बेल रूल चल रहे हैं। उसमें कई लखनऊ भी होंगे, उसमें एक जो बड़ा लखनऊ ये है कि इन्होंने अभी तक अपना काउंसिल नहीं किया। जब काउंसिल नहीं करते ना किसी केस के अंदर, मेडिकल भी नहीं आया। मेडिकल देखिए ये भी पुलिस की कितनी दहशत गर्दी है, गुंडागर्दी। एक बंदा बीमार, उसको उस पर मार चोटे के निशान मौजूद होंगे, ऑपरेट हुआ है, ऑपरेट हुआ है, हेड इंजरी है,
तो ये सब बातें जो है इस तकासे में आप कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर कर सकते हैं दोबारा मेडिकल का, मेडिकल दोबारा हो सकता है, ठीक है, सब ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। और पकड़ना ना पकड़ना पुलिस के बाद तो प्ली होगी, आप मुझसे पूछो कहेंगे हाँ जी वो बेल पे ऐसा क्या करें जी, बात भी सब दुरुस्त है, दुरुस्त है। हमारा निज़ाम ही ऐसा बना हुआ है, अंटैरम वाले को, बुरी जमानत वाले को नहीं पकड़ जब सकते। तक बेल कर में खारिज लेकिन ना ऐसा हो। भी तो होता है ना जी खुर्रम साहब जी, कि जिस केस में अंटैरम हुई है पुलिस जो है वो उसमें नहीं पकड़ती, लेकिन जब पकड़ना हो तो किसी और केस में पकड़ लेती। हाँ वो तो देखना आपका असर हो, आप ऐसे बासूख हो तो फिर तो पुलिस बहुत काम करती है इस मुल्क के अंदर, वो तो छोटी बात कर रहे हैं आप, बड़े बड़े काम यहाँ होते हैं। जब अब देखें ना आपके सामने मिसाल है जो पोलिटिकल केसेस होते हैं, आप देखते हैं ना जी, जिसकी जाके उसकी भैंस वाला साहब ही है, आप देखें आपके सामने तो बेचारे गरीब लोग हैं, उन्हें कौन सुनेगा, मैं समझता हूँ। हाँ और जब तक बेल पे हैं वो लोग, वो आज़ाद तो फिरेंगे, ठीक है, कौन पकड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा खुर्रम साहब, कोई ऐसे लोगों के लिए, हमारे देखने वालों में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कानून का बिल्कुल नहीं पता होता, खासकर कोई, मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनका कोई मर जाता है, जिनका कोई कत्ल हो जाता है, जिनको कोई बहुत शदीद ज़ख्मी कर देता है, या उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो जाता है, उनकी फैमिली में या उनके ख़ानदान में किसी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन सब कुछ आगे उलट हो जाता है जब गेम और बात पुलिस के पास आ जाती है। बस बात तो ही है ना, हम सब ले मैन हैं बेचारे, उसने कहा था कि किसके हाथ पर लहू तलाश करूं, आपके सामने कि सारे शहर में पहने हुए दस्ताने। देखिए हमारे लॉ में एक टर्म है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, रादर इट्स अ क्राइम। आपको कानून से ना शनासाई होना जो है ये भी एक जुर्म है, ये भी जुर्म है, हमें पता होना चाहिए, लेकिन क्या करें, इस माशरे में ट्रेनिंग नहीं हुई, ऐसा माशरा है वो पर बनता है उस हिसाब से, लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई बेचारों की कि कैसे करना है क्या करना है, तो आम आदमी जो यकीन करें इस निज़ाम के अंदर फंस के रह गए, पिस के रह गए, मुझे पता नहीं है। तो वहाँ लॉयर्स मौजूद हैं, उनसे मशवरा करना चाहिए, मैं समझता हूँ। और इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, मैं समझता हूँ, किसी वकील से मशवरा करते पहले को बात करते हैं सर कि हमारा ये हुआ होगा, कैसे FIR लिखवाई जाए, तो वकील आपको गाइड भी कर सकते हैं अच्छी तरह से कैसे करना है, आपके साथ आपके मामले के लिए भी तैयार है हमेशा वकील, थोड़ा सा बंद तैयार है हमेशा, अगर आपको पता नहीं है किसी चीज़ का तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। खुर्रम साहब, आप फौजदारी केस करते हैं जी जी कोर्ट में, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के ऊपर बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है। सही, ऑपरेशन पुलिस का काम है, जुर्म हुआ, FIR दी, मुलजिम पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है, ना पकड़ा तो इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी। ऐसे लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे ऐसे मामलात इस हवाले से देखने में आते हैं कि उसमें शार्प, ज़हीन और काम करने वाले लोगों का फुकदार, अच्छा फिर अदालतों में हाँ ये क्या रिजल्ट निकला? ऐसे ही ना, देखिए कोर्ट्स का काम है तफ्तीश देखना, शहादतें देखना और फैसला कर देना। हम कहते हैं कोर्ट ने छोड़ दिया, वो कोर्ट नहीं छोड़ती, वो केस ऐसे बनाया होता है कि कोर्ट के बाद ऑप्शन कोई नहीं छोड़ने के अलावा। जब सगासा वीक होगा, पुलिस की तफ्तीश वीक होगी और शहादतें वीक होगी तो क्या करेगी कोर्ट जी? छोड़ना कोर्ट की मजबूरी बन जाती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बात वही आपकी कि तफ्तीश का एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो यहाँ हमारे पास नहीं है। क्या वजह नहीं है? उसकी वजह ये है कि हालांकि मैं समझता हूँ कि अब तो जो पुलिस की तनख्वाहें आप देखें, जो मराहत दी गई है इनको, अब तो होश के नाखुन लें। और उसमें एक और बात भी है, वो डेलिबरेटली भी नहीं करते ये लोग, यकीन करें, जो केस पकड़ना हो ना उन्हें, कोई केस हाईलाइट हो जाए बहुत ज़्यादा, कोई पोलिटिकल केस हो या ऐसा केस हो तो फौरन पकड़ भी लेते हैं, उसकी GS फॉरेंसिक भी करते हैं, फूड टेस्ट करते हैं, कोई बंदा सिर्फ वाला हो ना, जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाया जाता है, सिस्टम है सारा, करना चाहे तो, जहाँ नहीं करना तो वहाँ लेखनवाज है, निज़ाम पूरा है उनके पास, यकीन कीजिए। जो मराहत उनको दी गई हैं, तनख्वाहें, सिस्टम, GS फॉरेंसिक और कैमरा और फूड ट्रेसिंग का सिस्टम सारा, ये चाहे तो 2 मिनट लगते हैं, करना चाहे तो नीयत होनी चाहिए। ना करने की वजह क्या? इनकी कहानी समझ लें, या अब कह रहे हैं जाइए, जिसका क्वेश्चन ना बेचारे का उसको ऐसे करते हैं। थानों का बकैसे देखा ही आपने, आपके सामने आम आदमी जाए तो क्या सलूक होता है, एक वकील जाए तो क्या सलूक होता है, एक आप जाए साहबी जाए तो क्या सलूक होता है, एक न्याय है ना बने हुए डिफरेंट किस्म के थानों के अंदर। तो ये करना जो कर सकते हैं, इनके वजह से वही है, काहली है, और एक आम आदमी को समझना कि जैसे जस्ट वेस्ट पेपर है, आ गया है, बैजा भाई करने हैं, देखने हैं, निज़ाम नहीं है सर, ट्रेनिंग नहीं हुई इनकी अभी तक। ठीक है।
तो ये इस वजह से भी केस जो है अदालतों में ख़राब होते हैं, लोग गुनाहगार जो है वो बेगुनाह हो जाता है। यही वजह इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश। देखिए ना, हम कई बार अदालतों में जाते हैं कि सिर्फ तफ्तीश ठीक नहीं हो रही, हम रिट करते हैं हाई कोर्ट के अंदर को बात करते हैं, तो कोर्ट कहती है देखिए जी ये हमारा काम है तफ्तीश करना। अदालतों को थोड़ा सा है इसमें, थोड़ा सा है, माइनस सा है। वो ये है कि कई बार अदालतों को जाए ना आपके सर ये तफ्तीश ठीक नहीं हो रही, उनका भी वी डोंट इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन, वो साफ कहते हैं जब अदालतों ने करना हो तो कहते हैं हम तो बैठ नहीं कर सकते तफ्तीश क्या, जो हम करेंगे वो होगा। ये अदालतें भी डबल रोल खेलती हैं कभी कभी ना, ये इसमें वाइस वर्सा ये थोड़ा सा चल रहा है। ठीक है, तो इसका भी है। खुरम साहब, इन्वेस्टिगेशन जो आपने बात किया कि इन्वेस्टिगेशन दुरुस्त नहीं हो रही, सही ऑप्शन है फर्स्ट बोर्ड में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सुनते हैं, आपकी तफ्तीश चेंज हो जाती है, अगर सब इंस्पेक्टर ने या इंस्पेक्टर ने किया तो डीएसपी के पास चली जाती है। फिर उसके बाद दूसरा बोर्ड होता है, डीएसपी ने अगर तफ्तीश नहीं किया तो फिर वो एसपी के पास चली जाती है, वो भी एक ऑप्शन है। फिर उसके बाद एक और एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन है, वहाँ बोर्ड पे आप चले जाए, फिर एसएसपी आपको सुनते हैं। तो इसमें तो बाज़ दफ़ा हम ये भी सुनते हैं और देखते भी हैं कि तफ्तीश अपनी मर्ज़ी की करवाने के लिए भी लोग तफ्तीशें चेंज करवाते हैं। ये होता है। और देखो ना, एक तो प्रोसेस बड़ा मुश्किल है, मैं गुजरा हूँ, आप तो शायद नहीं गुजरे, हम देखते थे रोज़ाना केसों में। एक बोर्ड बन गया जी, वो बोर्ड बनाना आसान नहीं, पहले धक्के खाने जाके आप वहाँ लाइन में लगे। एक तो निज़ाम ऐसा अजीब है, पहले आप एंटर हो जी, आप तफ्तीश चेंज करवानी है, एसपी साहब बैठे हैं लाहौर में, जाकर पहले फ़ोन जमा करा दें अपना जी। एक आम आदमी कहते कितने आ गए, अभी गिन करें, फ़ोन फट लिया उधर जल्दी, उसके बाद अंदर आ जाओ जी, चेकिंग हो रही बेचारे की। भैया भाई वहाँ लाइन लगी हुई है, पूरे पंजाब से लोग आए हुए, देखे ना, अब डेज इन्वेस्टिगेशन बैठा हुआ है गुरु सिंह में, पूरे पंजाब से लोग आए हुए जी, बिल्कुल वहाँ लाइन लगी हुई है, बिल्कुल ऐसे। अब आप जाके बैठ गए, अब वो कोई घंटे बाद कोई एक आवाज़ आई है, और ये सब चले गए जी। अब वो बेचारा तफ्तीश चेंज 4 घंटे का बैठा हुआ है, वो उनको मेरी भाई नहीं आई जी, अब कल आना जी उन्हें कहता है दफ़ा को बस काम नहीं करना यार, यानी आवाम को इतना ज़िल कर रहे हैं वहाँ जाके कि हाल ही क्यों नहीं, यकीन करें निज़ाम ही क्यों नहीं है। और इससे पहले निज़ाम बड़ा अच्छा था, यकीन करें, ये जो नया पुलिस ऑर्डर आया था ना 2002 के अंदर, उसके बाद हालात ख़राब हुए। ये बोर्ड बनना, पहले पता क्या होता, ये तफरीह ठीक नहीं हो रही, अब दरखास्त दी है आपने इंचार्ज को, ऐसे चुप ना भी मेहरबानी करेंगे उनको जी डीएसपी को मार्क भी उस वक्त थी, उन लोगों को इंसाफ आसानी से मिल जाता। अब पहले बोर्ड बनेगा, उसको तफ्तीशी को बुलाया जाएगा, वो अपनी नाम कहानी पहले सुनाएगा, उसके बाद सुन के ना उसको अब बुलाओ जी बाहर से, उसके बाद सुननी है अकेले बुला के उसको अंदर, एसपी साहब ने 10 मिनट की कर ले, उसके बाद वो बेचारा मुद्दई अंदर गया या मुलजम अंदर गया है, उसके बाद में सुनिए दिल किया बोर्ड बना दिया, दिल किया नहीं बनाया, क्या कर लेंगे आप, बोर्ड में ख्याल ना बिल्कुल ऐसे थोड़ा मुश्किल कर दिया आदमी के लिए। और फिर जिन मुकदमे के जिस मुकदमे के लिए हमने जिक्र किया, बात की कि शादरा टाउन के इलाके में, तो उसके लिए तो फिर इंसाफ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसे प्रोसेस है। और ये प्रोसेस मुश्किल है, लेकिन देखिए ना आज जैसे आप बता रहे हैं कि बेचारे बड़े मुशरीफ लोग हैं, फर्स्ट टाइम थाने गए जो आपने बताया जी हाँ, और दे डोंट नो कि कैसे इनको डील करना है, या और बाकी इस मुल्क में आम आदमी को पता नहीं बेचारे को डीलिंग कैसे करनी है पुलिस से। देखो ना अभी जो मैंने आपको बात बताई है कि FIR अच्छी नहीं हुई है, सही नहीं हुई उनसे, या उसने खुद ही FIR का सगासा बना दिया किसी पुलिस वाले ने, उनसे मिल मिला के, हाँ जी, तो उनके पास ऑप्शन तो मौजूद है, उन्हें हम गाइड करना चाहते हैं, कर भी सकते हैं, बिल्कुल सेक्शन कहता क्या है, सगासा प्राइवेट कर ले आप। कोर्ट जो है वो कोर्ट में मुकम्मल रिलीफ मिलता है, लेकिन लोगों को पता नहीं, लोगों को पता नहीं। ये कानूनी माहिर थे खुर्रम ज़िया भट्टी साहब, जिन्होंने इस केस के हवाले से हमें क्या कुछ हो सकता है, कैसे मजलूम को इंसाफ मिल सकता है और किस तरह से ज़ालिमों को सज़ा मिल सकती है, ये तमाम तफसीलें उन्होंने हमें बताई। इसी केस के हवाले से जो पुलिस का मौक़िफ़ है कि हमने गुनहगार लिख दिया है इन मुलज़मान को, और बहुत जल्द पुलिस कहती है कि इनके इंटरम कैंसिल करवा के इनको गिरफ़्तार करेंगे। लेकिन जो FIR दर्ज हुई, जिस तरह से खुर्रम साहब ने कहा कि उसमें उतनी जान नहीं है, कानूनी तौर पे उस मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ मिलने की तवक्को कम है, कम इम्कान है कि उनको इंसाफ मिल सकेगा, क्योंकि उसमें जो दफ़ात लगी हैं वो नाकाफ़ी हैं, और पुलिस जो है इनको कितना इंसाफ दे पाती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये था आज का
जुर्म अंजाम नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।